200 मीटर बटरफ्लाई के जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जो तैराक हैं, वो इस समय आपके सामने स्क्रीन पर prevail in this 4-lap butterfly event. And a good start from lane 2 and lane 3. Srishti Upadhyay and Uttara Gogai in the lead. Moving in the first 25. Exciting race, exciting lineup, testing their endurance, testing their mental and physical strength. महिलाओं की 200 मीटर बटरफ्लाई में किसी भी तरीके से आज एक नया रिकॉर्ड बन सकता है, नया कीर्तिमान बन सकता है। लेन नंबर 3 में उत्तरा गोगोई यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की, कल भी इन्होंने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया था। आज अभी तक लीड बनाई हुई, सबसे आगे चलती हुई और उसके साथ टक्कर देती हुई लेन नंबर 5 और 6। Yes, the lead is still intact by Uttara Gogoi of University of Delhi, hailing from Assam. And it will be interesting to see how she fares up in the last 50 meters. She touches the wall, moving in with a fast underwater touch. There you can see, moving in faster from lane number 2, Srishti Upadhyay, putting up the pedal, pressing the gas and moving in that last 25-meter mark. It will be interesting to watch Srishti Upadhyay versus Uttara Gogoi. This is where it all comes down to. This is all where it all boils down to. And the swimmers are going in for the last 10-meter mark. And Srishti Upadhyay, it seems like, going in stronger with Uttara Gogoi. And lane number 5, Kalyani Saxena in the second and third position. What a swim that was, with a timing of 2 minutes 30.11 seconds. महिलाओं की 200 मीटर बटरफ्लाई में कल्याणी सक्सेना को तीसरा स्थान मिला। उत्तरा गोगोई दिल्ली यूनिवर्सिटी से रजत पदक प्रदान किया गया। स्वर्ण पदक जादवपुर विश्वविद्यालय की सृष्टि उपाध्याय, कल्याणी सक्सेना, उत्तरा गोगोई और सृष्टि उपाध्याय एक साथ तस्वीर खिंचाती हुई। नेक्स्ट इवेंट पुरुषों की 4 गुना 100 मीटर मेडले और इसके साथ ही ये शुरू होता हुआ मेडले रिले, जिसमें सबसे पहले बैक स्ट्रोक, उसके बाद ब्रेस्ट स्ट्रोक, फिर बटरफ्लाई और उसके बाद फ्री स्टाइल कॉम्पिटिशन होता है। The Jain University in the pole position, and you can see Anna University breaststroker taking that lead. And not to forget, we have the champion Rohit Benediction, who had just touched the wall in backstroke leg. Breaststroke is the crucial leg in this medley relay, and it'll be interesting to watch in that last 50 of the breaststroke leg which one of these top swimmers take that edge. और लेन नंबर 4 में जैन यूनिवर्सिटी के शिवा सिरदर वापस आते हुए, लेन नंबर 5 में अन्ना यूनिवर्सिटी के सुकेश केएस उनको बराबर की टक्कर देते हुए, सफ़ेद कैप में आपकी स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं सबसे आगे चलते हुए शिवा श्रीधर, जो कि इस समय ब्रेस्ट स्ट्रोक में प्रतिभागी के तौर पर उन्होंने छलांग लगाई थी। उसके बाद बटरफ्लाई और फिर फ्री स्टाइल। जैन यूनिवर्सिटी कर्नाटका, द स्विमर्स आर लुकिंग शार्प. The swimmers are going in for the last 50 meter in the butterfly leg, going in stronger. Look at an underwater swim by the swimmer of Jain University, who is trying to make that comeback, catching up on his closest competitor. Both the swimmers going neck to neck. It will be interesting to see in the last 20 meters which one of them will prevail and give their team that extra edge, that lead into the anchor leg. Both the swimmers are looking strong and may jump together. What a jump, what a pounce that was. और आखिरी 100 मीटर के लिए जो छलांग लगाई गई है फ्री स्टाइल के लिए जैन यूनिवर्सिटी की तरफ से इस समय शुभ्रांत पात्रा और अन्ना यूनिवर्सिटी की तरफ से बेन हेनन के बीच में ज़बरदस्त मुकाबला होता हुआ लेन नंबर 4 एंड लेन नंबर 5। और पिछली बार अन्ना यूनिवर्सिटी ने स्वर्ण पदक जीता था, जैन यूनिवर्सिटी को रजत पदक मिला था और कांस्य पदक पर अधिकार किया था एडमास यूनिवर्सिटी के द्वारा, जो कि इस बार पार्टिसिपेट नहीं कर रही है। पंजाब विश्वविद्यालय के लेन नंबर 3 में इस समय सिद्धांत सेजवाल है आपकी स्क्रीन के ऊपर। और अभी आप देखें लेन नंबर 4, लेन नंबर 5 के अंदर जबरदस्त कंपटीशन होता हुआ। लेन नंबर 4 में येलो कैप के अंदर सबसे आगे। And that's the last 15 meters of this mouth-watering clash. There you could see Jain University in the yellow cap, Anna University in the white. Both the swimmers going in strong.
What a finish. That was a cracker of a race and the victory by Anna University. भार्गव फुकन, अनुराग सिंह, प्रियांशु महाजन और प्रथम शर्मा आपके सामने स्क्रीन पर, जिन्हें कांस्य पदक मिला। अन्ना यूनिवर्सिटी के टीम जिन्होंने की रजत पदक जीता 4 मिनट 0.31 सेकंड के साथ। और अब स्वर्ण पदक जैन विश्वविद्यालय कर्नाटका के नाम। The first event is 800-meter freestyle women. And a good start from lane number 3. We will see how they fare in this 800 meters like we saw yesterday in the men 1500 meter. The strategy, the build-up, but consistent performance by Anish Gowda. आखिरी जब लैप होता है, आखिरी एक चक्र बाकी है, उसके लिए बेल बजाई जाती है, घंटी बज चुकी है। प्रीता वी ने रिटर्न किया, घंटी बजी। ये घंटी प्रीता वी के लिए नहीं थी, बाकी प्रतिभागियों के लिए थी। खतरे की घंटी थी, बाकियों की घंटियां बज रही हैं, लेकिन प्रीता वा आधे पूल से सबसे आगे पहुंच चुकी हैं। स्वर्ण पदक के ऊपर उनका नाम लिखा जाना निश्चित है। अंतिम समय पर सभी प्रतिभागियों को जोर लगाना होगा। लेन नंबर 7 में इस समय मधुरा बीजी, लेन नंबर 2 में अनुमति अनिल, लेन नंबर 1 में भी वर्षा और लेन नंबर 3 में कोटा विश्वविद्यालय की फिरदौस कायम खानी पूरी कोशिश करते हुए कि वो रजत पदक और कांस्य पदक पर अधिकार कर पाएं। यहाँ पर देखिए लेन नंबर 2 में अनुमति और लेन नंबर 3 में फिरदौस कायम खानी कोशिश कर रही हैं दूसरे और तीसरे स्थान के लिए। And as she reaches the last 25-meter mark, Preetha V is going in for her next gold medal in 800 meters. The first medal of day 3 will be in the name of Preetha V. It seems like she is just about to get there in last 5-meter mark. Look at that kick. Look at that finish. Look at that power. और नया मीट रिकॉर्ड बनाया है। पिछली बार प्रीता वी ने 10 मिनट 10.15 सेकंड के साथ स्वर्ण पदक जीता था। आज उन्होंने 9 मिनट 48.11 सेकंड के साथ स्वर्ण पदक पर अधिकार पाया। ये उनका दूसरा स्वर्ण पदक है। In the 400-meter individual medley, and as expected from the middle lane, in lane number 4, Sridhar Shiva in the lead. But like I said, this is 8 laps of 2 or all 4 strokes to be demonstrated. Kulwinder, IM is one of the toughest event, and also it gives a stamping of a whole swimmer, complete swimmer to an individual. शिवा श्रीधर लेन नंबर 4 में, जो कि डिफेंडिंग चैंपियन है जैन यूनिवर्सिटी के। पिछले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम बेंगलुरु में उन्होंने 4 मिनट 38.98 सेकंड के साथ स्वर्ण पदक जीता था। सिद्धांत सेजवाल को रजत पदक मिला था और जतिन बी को कांस्य पदक मिला था। आज यहाँ पर क्या शिवा श्रीधर अपने स्वर्ण पदक की रक्षा कर पाएंगे, ये देखने वाली बात है रिटर्न करते हुए। और अब आखिर में फ्री स्टाइल 100 मीटर जो फ्री स्टाइल होगा उसमें बढ़त बनाई है, और ये मौका होता है कि फ्री स्टाइल में आप अपनी स्पीड को बढ़ा सकते हैं, जो अंतर है उस अंतर को पाट सकते हैं। लेकिन अभी भी शिवा श्रीधर सबसे आगे चलते हुए। And that's Shiva Sridhar in the lead in the last. He reaches the last 25 meter of this coveted 400 meter individual medal. Look at the pace, look at the speed, and what a convincing performance this has been so far by this champion swimmer from Christ University, Shiva Sridhar, winning the gold medal with a timing of 4 minutes 37.21 seconds, applauded by the spectators, and finishing in second, representing Jain University. दोनों के मध्य ये मुकाबला। Well, the bout has begun in the first round of 3 minutes. This is the women's wrestling 59 kilograms weight category. You have Manju in the red costume and Ankita in the blue costume. और लगातार ये प्रयासरत मंजू और शून्य अंक के साथ हैं। 4 अंक की बढ़त बना ली है अंकिता ने मंजू के ऊपर। पिछड़ रही हैं अपनी प्रतिद्वंदी अंकिता के विरुद्ध। स्वर्ण पदक के लिए यह मुकाबला है। देखना होगा, पूरी ताकत झोंकनी होगी यहां पर मंजू को, यदि वह वापसी करना चाहती हैं इस मुकाबले में। तो अंकिता अपने मौके को पूरी तरह से
पूर्ण करती है, अप्लाई करती है और जो योजनाबद्ध तरीके से वो सोच के चलती है उसी योजना को पूर्ण कर कर अंक में परिवर्तित करती है। तो ये एक अच्छी रणनीति है अंकिता की। लगातार प्रयासरत, ये यहाँ पर मंजू अपनी ही तकनीक में उलझ जाती हैं, पूर्ण नहीं कर पाती हैं तकनीक को। प्रयास कर रही हैं लेग अटैक करने का, मगर लेग अटैक करने में वह सफल नहीं हो रही। और वहीं अंकिता की अगर हम बात करें तो अंकिता पूर्णतः पकड़ने की कोशिश करती है और ये यहाँ पर मंजू के लिए फायदा रहा। बिल्कुल, यहाँ पर अब थोड़ी सी तकनीक में तब्दीली करी है मंजू ने, जिसका उसको फायदा भी हुआ है, मगर ये निरंतरता उसको बनानी होगी। जब भी अगर इसी तरीके से निरंतरता बनाए रखेंगी तो अंकों की दौड़ में वह आगे जा पाएंगी। येलो जोन के पास जाते हुए दोनों ही पहलवान, मगर यहाँ पर मैट के मध्य आकर खेलते हुए इस समय यहाँ प्रयास अच्छा है अंकिता का। हैंड लॉक कर लेती हैं, बहुत ही सुंदर तकनीक है उनकी। और मगर वहीं मंजू बार बार लेग अटैक करना चाह रही है, सिंगल लेग अटैक करना चाह रही है, मगर वहीं अंकिता जो है वो मंजू के हाथ को बांध लेती हैं, अपने हाथों में बाहर करने में कामयाब हुई। एक अंक सुनिश्चित उनको प्रदान किया जाएगा मंजू को। तो 5-4 का स्कोर। ये 3 मिनट आपकी जिंदगी के वो पल हैं जो आपको स्वर्णिम सफलताएं दिलाएंगे। अंतिम क्षणों में 1 मिनट से कम समय है। अब यहाँ पर चलता हुआ ये मुकाबला बाहर धकेलने की कोशिश थी और उसमें कामयाब हुई। 1 अंक और मिल गया, 6-4 का स्कोर और स्वर्णिम सफलताएं दिलाई हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी को मंजू ने इस अपने इस खेल कौशल में। खेलो इंडिया खेलो, गर्व से गौरव बना दो, खेलो इंडिया खेलो। अब अगला मुकाबला है 62 किलो भार वर्ग के लिए स्वर्ण पदक के लिए। गुरु जमशेश्वर यूनिवर्सिटी एशियन चैंपियनशिप में रजत पदक विजेता रही हैं, खेलो इंडिया यूथ गेम की स्वर्ण पदक विजेता वर्ष 2022 की और ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी की स्वर्ण पदक विजेता है निकिता वर्ष 2022 की। तो खेलों का अनुभव उनके पास बहुत अच्छा। 59 वेट कैटेगरी में मंजू ने स्वर्ण पदक जीता है दिल्ली की और ये है 62 किलो भार वर्ग में। पीछे आने में कामयाब, 2 अंक और सुनिश्चित किए अपने लिए। 4-0 का स्कोर। अंतिम क्षणों में जाता ये मुकाबला, कुछ ही सेकंड शेष हैं। बढ़त बनाने में कामयाब है अभी तक निकिता। क्या दूसरा स्वर्ण पदक दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्रा जीत पाएंगी? यहां पर सिंगल लेग अटैक, पीछे आने का प्रयास है यहां पर सिमरन का, मगर अपनी रक्षा करती हुई नितिका, दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्रा, और 3 अंकों से बढ़त बनाने में कामयाब है नितिका। और ये मुकाबला समाप्त, 4-1 का निर्णय रहा। अंकों के आधार पर स्वर्ण पदक विजेता हो गई हैं यहां पर नितिका। 62 किलो भार वर्ग में फाइनल मुकाबला उन्होंने जीता अपनी प्रतिद्वंदी सिमरन के विरुद्ध और विजयश्री प्राप्त करी। खेलो इंडिया खेलो, गर्व से गौरव बना दो, खेलो इंडिया खेलो। और अब स्वर्ण पदक के लिए मुकाबला मंजू वर्सेस निकिता। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी की हैं ये मंजू और निकिता के साथ उनका मुकाबला। प्रयास अच्छे हैं यहाँ पर मंजू जो कि गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी की हैं, लाल पोशाक में, और वहीं नीली पोशाक में है निकिता। सिंगल लेग अटैक करना चाह रही थी निकिता। भगत पूल सिंह महिला विश्वविद्यालय की। प्रयास अच्छा यहाँ पर मंजू का और पीछे आने का प्रयास है। लेग अटैक कर रखा है उन्होंने, पीछे आने का प्रयास और पीछे आने में सफलता उनको मिल पाए यह देखना होगा। जब भी पीछे आती हैं तो हैंड लॉक कर रखा है यहाँ पर निकिता ने उनका,
मंजू का, मगर मंजू ने अपनी तकनीक बदली। तकनीक बदलने के साथ ही 2 अंक उनको और मिल गए, तो 2-0 का स्कोर। और यहाँ पर हफ्ता भरने का प्रयास करते हुए और ये बाहर धकेलने के लिए जद्दोजहद, 1 अंक का और इजाफा हुआ। और अब टेक्निकल सुपेरिटी में केवल 2 अंक दरकार है। अब ज्यादातर खिलाड़ियों का मैं देख रहा हूं, महिलाओं में ऐसा भरोसा कमी देखने को मिला है। अपने दाव में उलझी और यहाँ 2 अंक बटोर कर मुकाबले का समापन किया। और अब एक और स्वर्ण पदक, यानी 3 स्वर्ण पदक उन्होंने जीते हैं। सोनू वर्सेस शिवालय। तो अब ये सोनू वर्सेस शिवाया के मुकाबले का लुत्फ उठाया जाए इन्हीं दिग्गजों की नगरी में, जिनका कि हमने अभी जिक्र किया। और यहां पर गिराया पलक झपकते ही, और यहां पर कुश्ती समाप्त। जी हां, बाई फॉल के आधार पर विजयी रहे। एक बार फिर से BHU IIT स्टूडेंट एक्टिविटी कॉम्प्लेक्स की छत दिखाने के लिए मजबूर कर दिया इस रेसलर ने। और अब ये शिवाया को मिला स्वर्ण पदक। शिवाया ने अपना मौका ताड़ा था। First game, second set. After losing the first set, 6-love. Good first serve. क्या इन पंजाब यूनिवर्सिटी और उसके साथ यहाँ पर गेम जीता है पहली बार इस श्रृंखला में। इस दूसरे सेट में पहला गेम अपने नाम जीतते हुए यहाँ पर 1-0 की बढ़त यहाँ पर पाई है गुरलीन ने। बेस लाइन आराम से खेल रही है, वेरी गुड। शॉट अच्छा था। 40-15 आउट। 40-15 सुपर आकारी। और यहाँ पर गलती कर गई प्रतिभा, और निश्चित रूप से ये गेम जीता है यहाँ पर गुरलीन ने। अच्छा रिटर्न बैकहैंड, और हाथ मुठिया मीचते हुए दिखा रहे हैं कि शायद जो बात की आपने कि आइस पैक और थोड़ा सा स्प्रे जो उन्होंने लिया उसका फायदा मिला। And again, there, the forehand, that has been a problem. There for Gurleen again, 30 all is a good start. But Pratibha, as I said, Dushyant should seal this in this game. Because if she allows Gurleen to make a comeback, yeah, that's better. But still going out. And yes, she's talking to herself. She's making things a little tough here for Pratibha. Coming back and winning 4 points to get the game. It's tough now for Pratibha. Oh, there. That's the first point. So, 1 gone out of 4. 40-15. मैच पॉइंट पर इस समय प्रतिभा। शानदार खेल हुआ यहाँ पर। 6-0 से उन्होंने पहला सेट जीता था, दूसरे सेट में 6-5 की बढ़त। मैच पॉइंट लेती हुई वहां पर, और इसके साथ ये मुकाबला यहाँ पर प्रतिभा ने 6-0, 7-5 से अपने पक्ष में किया है। और लाइट मेंस के मुकाबले सिंगल्स के शुरू हो गए हैं। और लेन नंबर 1 में बलराम सोनी, लेन नंबर 2 में पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के सिमरनजीत हैं, और लेन नंबर 3 में शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर के प्रथमेश हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ की टीम कि सिमरनजीत जो हैं, जो लेन नंबर 2 में है, उन्होंने अब हल्की सी बढ़त बना ली है। और जैसे जैसे हम मिड वाटर्स की बात करें तो एक बेटर रिदम में वो नज़र आ रहे हैं। वहीं लेन नंबर 1 गुरु नानक यूनिवर्सिटी के बलराम सोनी, अब थोड़े से ज़्यादा उनकी अपर बॉडी हिल रही है, या थोड़ी ज़्यादा अब थकान जब बढ़ जाती है तो टेक्निक पर उसका सीधा असर पड़ता है। वहीं आप अगर
सिमरनजीत को देखें तो एक उनकी बॉडी अभी भी शेप लूज़ नहीं किया है उन्होंने अपने रोइंग का। ही इज़ जस्ट गोइंग स्मूथली अक्रॉस वाटर। और वहीं तीसरे नंबर पे जो काफ़ी दूर रह गए हैं शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर के प्रथमेश। और इस बीच सिमरनजीत ने सिंगल स्कल लाइट वेट सिंगल स्कल के मुकाबले जीत लिए हैं। बहुत खुश है अपने प्रदर्शन से। एक लंबे गैप से उन्होंने गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी को हराया। ये आखिरी रेस लाइट वेट मेंस डबल स्कल्स शुरू हो गई है। अगर हम बात करें लेन नंबर 2 में गुरकाशी यूनिवर्सिटी के जगवीर ताखर हैं, गुरप्रीत शाह हैं और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के राहुल और अजय हैं। लेन नंबर 3 पर है राहुल और अजय की जोड़ी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की। और उससे पीछे लेन नंबर 2 में गुरकाशी यूनिवर्सिटी के जगवीर ताकर और गुरप्रीत शाह मौजूद हैं। और अब धीरे धीरे गैप बढ़ता हुआ 1500 मीटर के मार्क तक पहुंच रही हैं ये दोनों यूनिवर्सिटीज़। उसके बाद देखना दिलचस्प होगा कि कितना कुछ बचा हुआ है गुरकाशी यूनिवर्सिटी के इस टीम के पास उस आखिरी 500 मीटर में अपनी टीम को आगे ले जाने के लिए। तो इन्हीं को कुछ करना पड़ेगा। नंबर 2 पे आप देख सकते हैं जगवीर और गुरप्रीत की जोड़ी को 1500 मीटर लाइन इन्होंने मार्क क्रॉस कर लिया है। 10 से 15 मीटर की जो दूरी है वो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने बरकरार रखी है। यहाँ पर अब फ्लोटिंग रेड मार्क्स आ गए हैं। दूरी अब बहुत कम बची है फिनिशिंग लाइन में, करीब 70 से 80 मीटर की दूरी है और उतने ही समय बचा है गुरकाशी यूनिवर्सिटी के पास कि वो फाइनल में जगह बनाने के लिए एक चैलेंज पेश कर सके कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के पास। लेकिन राहुल और अजय की जोड़ी बखूबी जानती है कि अब दिल्ली दूर नहीं, या यूं कहें कि फाइनल की जगह अब दूर नहीं है, क्योंकि दोनों अब एक लगभग उन्होंने अपने रेटिंग्स कम कर दिए हैं। अब वो जानते हैं कि अब फिनिश लाइन बहुत करीब है, जीत बहुत करीब है। और इस जीत के साथ ही वो रिपेचाज हीट जो आज के हैं लाइट मेंस वेट कैटेगरी डबल स्कल्स में वो उन्होंने हासिल कर ली है। और इसके साथ कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी फाइनल में पहुंच गई है। यशवंतराव चौहान महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी है। So she just started the race, and how they start the races, they give you 2 minutes. They'll call each of them to see whether they are ready. Then they will give them 2 minutes to set their boat, align themselves, and then they will give the start. तो फिलहाल सावित्रीबाई फुले के खुले सार्थक जो हैं वो इस रेस को लीड कर रहे हैं और धनंजय निकम जो यशवंतराव चौहान यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र के हैं उनके बोट में या उनके जो इक्विपमेंट है उसमें कुछ समस्या आई है जहां वो अच्छा स्टार्ट नहीं कर पाए हैं, इसीलिए वो फ्रेम में नहीं है। और आप देख सकते हैं जो खुले सार्थक हैं वो और ज़्यादा दमखम लगा रहे हैं। और जैसे अगर हम रोइंग की भाषा में बात करें तो जो अपनी रेटिंग्स है और उसकी वो लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन धनंजय निकम के पास मौका है और उन्होंने फिनिश लाइन क्रॉस कर ली है और फाइनल में इसी के साथ अपनी जगह यशवंतराव चौहान के धनंजय निकम ने बना ली है। ये स्टार्टर ने फ्लैग नीचे करते ही अब तीनों जो टीमें हैं वो निकल पड़ी हैं फाइनल में जगह बनाने के लिए। लेन नंबर 1 पर लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, लेन नंबर 2 पर सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी और लेन नंबर 3 पर गुरु नानक यूनिवर्सिटी अमृतसर की टीमें हैं। तो 500 मीटर का मार्क इस रेस में अभी तक हो चुका है और सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी ने शुरुआती बढ़त उसकी जोड़ी भाग्यश्री चौहान और कोमल बोड़के ने थोड़ी सी एडवांटेज ले ली। और So if you see now, both the teams are going head to head. They both are rowing extremely well. They both are going at the same speed. Their ratings are almost the same. But now it depends on who has got more energy in the middle of the race. And whoever can go the smoothest in this part of the race will decide on who is going to win. फिलहाल सावित्रीबाई फुले ने 1500 मीटर का मार्क क्रॉस करके अब आप देख सकते हैं जो फ्लोटिंग मार्कर्स हैं वो रेड हो गए। सो दे आर इंडिकेटर कि अब फिनिश लाइन बहुत करीब है। That's right. So when you come to the last 200 meters, you will have red markers telling you that you are close. You have to hold on and you have to push. That last maybe 20 strokes, 30 strokes are there for you to push the boat to get to the final first.
और अब लगता है कि सावित्रीबाई फुले ने बहुत ही कंफर्टेबल लीड बना ली है। शुरुआत से ही ये टीम जो है अच्छा प्रदर्शन कर रही थी और हमने देखा कि एक समय ज़रूर था कि गुरु नानक यूनिवर्सिटी अमृतसर उनके बहुत करीब आ गई थी, लेकिन लेन नंबर 2 में शुरू करने वाली सावित्रीबाई फुले की भाग्यश्री चौहान और कोमल बोर्ड के फिनिश लाइन के बहुत करीब हैं और काफ़ी उम्मीद है कि वो ये मुकाबला जीतकर फाइनल में अपनी जगह बना लें। और बिल्कुल वही हुआ है, फिनिश लाइन को क्रॉस करके इस जोड़ी ने अपने यूनिवर्सिटी को फाइनल में पहुँचा दिया है। मेंस फोर्स के मुकाबले शुरू होने हैं। रेस नंबर 41 उस्मानिया यूनिवर्सिटी लेन नंबर 1 में, एलपीयू यूनिवर्सिटी लेन नंबर 2 में और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी मोहाली लेन नंबर 3 में। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी मोहाली के रणजोत सिंह, मनिंदर सिंह, गुरजीवनजोत सिंह और रणबीर सिंह है और ये रेस शुरू हो चुकी है। और फिलहाल चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की जोड़ी ने, माफ़ कीजिए, इस टीम ने तो हल्की सी बढ़त ज़रूर बना ली है और जो सबसे आखिर में अगर आप देखें तो उन्हें जो सीट नंबर कहने में वो आखिर में है, लेकिन सीट नंबर उनकी नंबर 1 की होती है क्योंकि पीट करके यहाँ पे रो करना होता है, उनको बाव कहा जाता है। जो बीच के 2 खिलाड़ी होते हैं उन्हें इंजन रूम कहा जाता है और फिलहाल इंजन रूम चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी मोहाली का बहुत मजबूत नज़र आया है। उन्होंने ये रेस जीत ली है और इसी के साथ फाइनल में अपनी जगह बना ली है।